ہمارے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج پھر میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار کہانی، ہانیہ اور انسپیکٹر ذوحان کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈھول کی تھاپ پر وہاں رقص چل رہا تھا۔ ہانیہ کے پاؤں تھرک رہے تھے۔ اسے ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہاں بہت سارے لوگ تھے۔ ان میں آدمی، عورتیں، بچے سب شامل تھے۔ فضا کی شادی چل رہی تھی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہانیہ معمولی سی تیار ہوئی تھی۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ خود کو اطمینان سے تیار کر سکتی۔ ہانیہ نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا اور ناراض ہونے لگی کہ اگر اس کے یہ پاؤں نہ رکے تو اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ سامنے فضا کی کزنز ڈانس کر رہی تھی۔ یار ہانیہ، تمہیں بھی کتنا اچھا ڈانس آتا ہے، جاؤ جا کر ڈانس کرو۔ فضا نے اسے دیکھتے ہی کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارے جاؤ نا، میں تمہیں جانتی ہوں تم کس قدر اندر سے ڈانس کرنے کو بے چین ہو۔ جاؤ جا کر بتا دو ان تمام لوگوں کو تم بہت اعلیٰ قسم کی ڈانسر ہو۔ فضا نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا کر چل دی۔ چلو ایک ڈانس تمہارے نام، آخری دفعہ۔ اس نے ذہن کے دریچوں پر دو آنکھیں ایسے سوچی تھی کہ اسے بولنا پڑا آخری بار۔ اگر اسے معلوم ہو گیا؟ نہیں، اسے کیسے معلوم ہوگا؟ وہ 2 دن کے لیے گیا ہوا تھا۔ اسی لیے مطمئن انداز سے خود کو تسلی دی اور دوپٹہ کمر پر باندھ کر اس کی کزنز کے گرد چلی آئی اور وہ اسے دیکھ کر خوش آمدید کہنے لگی۔ چلو ہانیہ، اپنا جلوہ دکھاؤ، کیسا ڈانس کر سکتی ہو؟ اس کی کزنز نے اسے چھیڑا تو وہ ہنسنے لگی۔ فضا نے انگوٹھا دکھایا۔ وہ سر ہلاتی اپنی پسند کا گانا لگائے تھرک رہی تھی، ہاتھ ہلاتی اپنے جلوے دکھا رہی تھی، یوں کہ سب حیرت سے اس کے سٹیپس دیکھ رہے تھے۔ وہ عام ڈانس نہیں، کھل کر ڈانس کر رہی تھی۔ وہ ڈانس کرتی مگن تھی جب پیچھے سے شادی کے ماحول میں اچانک ہنگامہ سا مچ گیا، کیونکہ وہاں اچانک انسپیکٹر ذوحان کی انٹری ہوئی۔ لیکن سب لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتی ہانیہ اپنے جوش میں اتنی مگن تھی کہ اچانک شور پر سامنے دیکھا تو سانس سینے میں اٹک گئی۔ خوف سے لرزش طاری ہوئی۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ وہاں کیسے آیا تھا؟ اس نے خوف سے آنکھیں پھیلائی اسے دیکھ کر سوچا۔ وہ گھورتے ہوئے باوردی وہاں آیا تھا۔ اس نے ہانیہ کی جانب رخ کیا۔ وہ سب شادی میں انسپیکٹر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس نے جاتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ اس نے ہانیہ کو گھورتی نظروں سے دیکھ کر جب یہ کہا تو فضا بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ رکے انسپیکٹر، آپ اسے کس جرم میں اندر ڈال رہے ہیں؟ انسپیکٹر ذوحان نے ہانیہ کی کلائی تھامی تو اس کی دلہن بنی دوست بیچ میں آئی۔ ڈانس کے جرم میں بغیر شوہر کی اجازت گھر سے نکلنے پر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی سخت آواز پر سب خاموش ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کس کی بیوی ہے جو جھوٹ بول کر گھر سے نکلی تھی۔ کہ کس نے رپورٹ کروائی؟ ہانیہ غصے سے اور خوف سے روئی تو وہ گہرا مسکرایا۔ اس کے شوہر نے گھر سے کافی دیر غائب ہونے پر رپورٹ کروائی ہے۔ اس نے ہانیہ کے کانپتے وجود کو دیکھ کر کہا تو وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ خوف اس پر غالب آنے لگا تھا۔ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ فضا کو لگا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے، اصل ماجرا کچھ اور ہے۔ اچھا، پھر آپ ان کے بھائی کو کال کر کے پوچھ لیں۔ ذوحان نے ابرو اچکا کر فضا سے کہا تو وہ اسے گھورتی ہوئی ہانیہ کے بھائی کو کال میں لانے لگی۔ ہیلو سہیل بھائی، ہانیہ کی شادی کب کی آپ نے؟ یہاں کوئی ذوحان؟ وہ ابھی کہہ رہی تھی، اسے سہیل کی بات سن کر خاموش ہونا پڑا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے ہانیہ کو دیکھنے لگی جس نے اس سے نظریں چرا لی تھی۔ ہانیہ، تم نے مجھے بتایا تک نہیں، 2 دن پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تم اس انسپیکٹر کی بیوی ہو؟ سیریسلی؟ تم کسی پولیس والے کی بیوی ہو؟ وہ اسے حیرت سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی حیرانی کسی طور ختم نہیں ہو رہی تھی۔ یقین دہانی کے باوجود اسے یقین کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ ہانیہ نے سر ہلا دیا اور ذوحان کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وہ بائک تک آیا اور اسے بائک پر بٹھا کر سٹارٹ کی۔ ٹھیک سے پکڑو، اس نے سرد لہجے میں ہانیہ کے کندھا نہ پکڑنے پر ٹوکا تو وہ اسے گھورتی ہوئی کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ پہلی بار بائک پر بیٹھی تھی۔ اچانک خوف سے چیخ پڑی۔
ज़ुहान ने कोफ्त से पीछे देखा। क्या मुसीबत है? उसने बाइक रोककर हानिया को देखा। मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी, मेरा मुंह टूट जाएगा, उसने गुस्से और बेबसी से बोला। तो ज़ुहान ने माथा मसला। जब स्टेशन जाओगी तो बहुत कुछ टूटेगा, मुंह टूट जाने का डर है तुम्हें? मेरी तरह दोनों तरफ पाँव करके बैठो। उसने एक रास्ता निकाला और हानिया उसे देखने लगी। वो गैरतमंद मर्द था और अचानक हानिया को लड़कों की तरह बैठने को कह रहा था। मैं स्टेशन नहीं जाऊंगी, वो चिढ़ते लहजे में बोली। वो खुद को मजबूत कर रही थी और उसे लड़ने के मूड में आ चुकी थी। ये मत भूलो तुम मेरी बीवी हो, 2 दिन पहले मेरी सेठ सजाए बैठी थी, उसने गुस्से से घूर कर जताया। बीवी हूं तो क्या करेंगे? आपकी बात ना मानने पर आप मुझे बात बात पर स्टेशन पर बंद कर देंगे, उसने गुस्से से आंसू साफ करते कहा। ज़ुहान ने उसके आंसू देखकर नरम पड़ गया। अच्छा बैठ जाओ, नहीं ले जा रहा, उसने बाइक पर बैठते हुए हानिया से कहा। तो वो आंसू साफ करते हुए बाइक पर उसी की तरह बैठ गई। आपकी वजह से पैंट शर्ट पहनना छोड़ी है, वरना अभी मैं लड़का ही लगती, उसने गुस्से से कहा। तो ज़ुहान के लब मुस्कुराने लगे। हानिया ने अचानक ज़ुहान का गुस्सा ठंडा कर दिया था, वरना वो जब गुस्सा होता अगला बंदा पनाह मांगता था। हानिया मुसलसल बड़बड़ा रही थी। वो घर आए। ज़ुहान ने बाइक खड़ी करते लाइट्स ऑन की। अब बताओ मुझे, मेरी इजाज़त के बिना घर से बाहर कदम कैसे निकाले? वो अपनी बेल्ट उतारे पूछने लगा और हानिया की जान लबों पर आ गई कि क्या उसे मारने वाला था। हानिया की ज़बान जो बंद रह जाती। शादी कर ली थी, अब उसको मजाजी खुदा मानना ही पड़ेगा, वरना वो मनमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। हानिया कदम पीछे उठाती लरसती हुई उसे देख रही थी। आपसे पूछा था, आपने मना कर दिया, वो सीने में घुटती आवाज़ के बावजूद अपना दिफा करने लगी। अच्छा, फिर मेरी इजाज़त के बिना तुम ऐसी हरकतें करोगी? मैंने बताया था मुझे ढकी छुपी लड़कियां पसंद है, और तुम वहाँ डांस कर रही थी। वहाँ के मर्द मुस्कुराकर तुम्हारी वीडियो बना रहे थे, उसने गुस्से से माथे पर बल डाले कहा। तो वो थूक निकलने लगी। ये बात वाकई काबिल माफ़ी नहीं थी। इसका भाई होता तो वो भी इस बात की इजाज़त ना देता, और वो मिडिल क्लास मशरकी मर्द था, उसकी क्लास का भी नहीं था। उसे मालूम था ऐसे लोग अपनी बीवी को 7 पर्दों में रखते हैं। दूसरों की बीवियों को भले घूरते रहें, उन्हें अपनी बीवी दीनी तालीम याफ्ता चाहिए होती थी। आपको नहीं मालूम, मैंने खुद को रोकने की कोशिश की थी और आपका ख्याल भी आया था, लेकिन वो सिसक कर चेहरे पर हाथ रखे बोलने लगी। वो उसके करीब आ चुका था। उसने बेल्ट सोफे पर उछाल दी और उसे देखने लगा, जो डर के मारे चेहरे पर हाथ रख गई थी। जाओ जाकर चेंज करो और खाना लगाओ, उसने अचानक पीछे होते कहा। तो वो उसे देखने लगी। बाइक के हैंडल पर खाने का शॉपर लटका है, उसने मज़ीद कहा और चेंज करने चला गया। वो 1 दिन बाद घर आया था और उसे ना पाकर पागल हो गया था। वो जानता था ये शादी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है और वो कितनी जज्बाती थी। इसी बात का अंदाज़ा पहली रात ही उसे हो चुका था। वो समझता कहीं हानिया भाग ना गई हो, और उसे मालूम था सड़कों पर कैसे जराइम पेशा अफराद घूमते हैं। अगर किसी की निगाह में वो लड़की आ गई और उसके साथ कुछ हो गया तो वो कैसे खुद को माफ़ कर पाएगा। वो पागल होता उसे कॉल्स कर रहा था जब उसकी निगाह खुली अलमारी के दरवाजे पर गई। उसका एक जोड़ा गायब था। ड्रेसिंग टेबल बता रही थी कोई यहाँ से तैयार होकर गया है। मेकअप का सामान बेतरतीब पड़ा था। वो लब भेंच गया। उसे मालूम हो गया था कि वो कहाँ गई है। वो शादी की रात से उसका एक ही बात कहकर जीना हराम किए हुए थी कि मुझे फ़िज़ा की शादी पर जाना है, आप कराची जा रहे हैं, मुझे वहाँ छोड़ दें। और ज़ुहान ने साफ इनकार कर दिया था। गालिबन वो उसके इनकार के बावजूद भी वहाँ जा चुकी होगी। वो वर्दी में था और ऐसे ही फ़िज़ा की लोकेशन मालूम करते वहाँ जा पहुँचा। धचका उसे जब लगा जब सामने डांस करती लड़की पर निगाह पड़ी। वो गुस्से से खौल उठा। उसकी बीवी मर्दों का दिल लुभा रही थी। उसने माथे पर बल डाले उसे गिरफ्तार करने का सोचा। इसकी इजाज़त के बिना गायब हुई थी। उसकी सज़ा तो बनती थी, लेकिन उसका रोना सिसकना ज़ुहान को परेशान कर गया। वो इस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं रखता था, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी थी।
उसके एक एक लम्हे का वो जिम्मेदार था। वो उसकी पनाह में रोए। ज़ुहान को ये गवारा नहीं था। वो गुस्से पर काबू किए हानिया को एक मौका दे गया। वो फ्रेश होकर आया तो उसने बस ट्राउज़र पहना हुआ था। वो टेबल पर आया। बाल रगड़ते हुए उसने खाने की जानिब देखा। वो शॉपर में ही खाना शुरू हो गई थी। ज़ुहान ने माथा पीटा। यार, इसको प्लेट में निकाल कर खा लो, उसने टोका। आपको क्या मालूम कितनी भूख लग रही थी। अगर आप ना आते मैं वहाँ गोल गप्पे और आइसक्रीम खा रही होती। वो सर झटक कर नाराज़ होने लगी। अगर लाना ही था तो सब कुछ खिला पिला कर ले आता। बिरयानी इन सब चीज़ों से अच्छी होती है, उसने हानिया की बात सुनते जवाब दिया। मेरे लिए फ़िलहाल कुछ अच्छा नहीं। जितनी सारी मज़े मज़े की चीज़ें थी जिनको आपने खाने ना दिया, और अब अपनी लाई गई बिरयानी की तारीफ़ कर रहे हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, उसने बिरयानी खाते हुए कहा। जितने शौक़ से वो खा रही थी लग नहीं रहा था कि ज़बरदस्ती खा रही है। उसने इस बार हानिया की बात का जवाब ना दिया। आप घर में पूरे कपड़े पहन कर रहा करें, उसने एक नज़र ज़ुहान को देखकर नज़रें झुका ली। वो खाने में इतनी मुतवज्जो थी उसे देख ना सकी कि वो किस हुलिये में वहाँ बैठा है। फिर बाहर इसी हुलिये में रहा करूँ, वो अबरू उचकाकर पूछने लगा तो वो उसे घूरने लगी। आपको बाहर पूरे ड्रेस में रहना चाहिए, वो मशरकी औरतों की तरह उसे कह रही थी तो ज़ुहान मुस्कुरा दिया। फिर घर में भी अपनी मर्जी से घूम फिर ना सकूं तो अपने घर में रहने का क्या फ़ायदा, उसने हानिया की अजीब मंतक पर जवाब दिया। मुझे आदत है, जॉब से आने के बाद महज ट्राउज़र और बनियान में रहता हूँ। सारा दिन मोटी वर्दी पहनने के बाद मुझे अपने जिस्म को आराम भी देना होता है, उसने प्लेट उठाते हुए कहा और हानिया के हाथ से शॉपर लेकर बची हुई बिरयानी प्लेट में डालकर चम्मच लगाकर उसे प्लेट थमा दी। वो उसे कुछ कहे बिना देखे गई। वो किचन में आया, बर्तन धोकर वापस कमरे की जानिब पलट गया। हानिया खाना ख़त्म करके प्लेट सिंक में डाले वहाँ से सीधा कमरे में चली आई। उसने ज़ुहान को देखा तो वो मोबाइल पर कुछ करने में मसरूफ़ था। वो लब कुचलती उसे देखने लगी। उसने पहली बार इसका जायज़ा लिया था। चौड़े शोल्डर, चौड़ा सीना, वो लाजमी वर्जिश करता होगा। ऐसी बॉडी नॉर्मल रूटीन वालों की नहीं होती। उसके बाल अभी तक गीले थे और माथे पर बिखरे हुए थे। बाजू देखकर हानिया को लगा कभी उसने एक हाथ उठाकर दे दिया तो हानिया का मुंह गर्दन से अलग हो जाएगा। उसने अपनी सोच पर झुर्री ली। उसके लबों को देख रही थी, मूंछों तले गुलाबी लब। वो नज़रें चुराने लगी थी जब ज़ुहान की उस पर निगाह पड़ गई जो उसका बगौर जायज़ा ले रही थी। कुछ कहना है, वो उससे पूछने लगा। नहीं, वो गड़बड़ाकर करवट बदल कर लेट गई तो वो कंधे उचका गया। आप ही आ रही हैं बच्चों समेत कुछ दिन के लिए। मुझे मालूम है तुम इतने छोटे घर में आराम से नहीं रह पा रही हो, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, वो अफसोस से गर्दन झुलाते हुए बोला तो हानिया उसे देखने लगी। निकाह इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि गवाहान के अलावा कोई नहीं आया था। हानिया उसकी बहन से कभी नहीं मिली थी। कॉल पर बात करने का कहा तो हानिया ने मुंह फेर लिया था और अब ज़ुहान की बहन खुद वहाँ आ रही थी। हानिया को तशवीश होने लगी वो रिवायती नंदों की तरह ना हो। ज़ुहान ने हानिया को किसी तैयारी का नहीं कहा था, ना ही हानिया को कुछ बनाना आता था। दोपहर में ज़ुहान ही उन्हें ड्यूटी से सीधा रेलवे स्टेशन लेने गया। उन्हें वहाँ से ही टैक्सी में घर ले आया। वो हैदराबाद से लाहौर आई थी। ज़ुहान ने ही उनको पानी दिया। हानिया कमरे में सो रही थी। उसने सोचा आवाज़ पर खुद उठकर आ जाएगी, लेकिन उसे सोता पाकर वो खुद उठाने उसके सर पर पहुंच गया। हानिया, आप ही आई हुई हैं, उसने आवाज़ दी तो वो हाथ झुलाने लगी। हानिया, अब उठ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने इस बार धमकी दी। वो अपनी बहन को बहुत अहमियत देता था और हानिया से भी यही चाहता था। उसकी बहन ने उसे माँ बनकर पाला था। वो उनको माँ की जगह रखता था। वो हानिया के ना उठने पर उसे बाजू से खींचकर खड़ा कर गया। उठो और बाहर चलो, वो गुस्से से बोला तो हानिया उसे देखने लगी। वो उसे खींचते हुए बाहर ले गया। उसकी बहन अपने सबसे छोटे बेटे के कपड़े तब्दील कर रही थी। उसे देखकर मुस्कुराकर खड़ी हो गई। हानिया, कैसी हो, उन्होंने गले मिलते हुए पूछा। आप कैसी हैं, वो सवाल इग्नोर किए सवाल करने लगी।
ज़ुहान की वजह से उसने सवाल पूछा था, वरना वो सवाल पूछने के हक में नहीं थी। वो मुस्कुराकर उससे सवाल कर रही थी। ज़ुहान ने न जाने उनसे क्या कहा था कि वो शादी के मुतालिक कुछ पूछ नहीं रही थी, वरना उसे बताते शर्मिंदगी होती। वो काफ़ी अच्छे से मिली थी, फिर आराम करने चली गई, जबकि ज़ुहान किचन में खड़ा चाय बना रहा था। शाम होने वाली थी। चाय के साथ वो रोल, समोसे और बिस्किट वगैरह ले आया था। बच्चों के लिए अलग से खाने पीने का सामान लाया था। उसने टेबल सजाई। हानिया ने लब कुचलते उसका साथ दिया और वो उसे एक नज़र देख कर रह गया। वो जब काम करती थी ख़राब ही करती थी। वो मेज़ सजाने के बाद अपनी आपी और बच्चों को बाहर ले आया। मामी, ये आपने बनाई हैं? 5 साला जोहा ने उससे पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे चाय बनाने नहीं आती, ये तो बहुत दूर की बात है, उसने बिना शर्मिंदा होते बताया। ज़ुहान, तुम खाना बाज़ार से खा रहे हो? उसकी आपी ने फ़िक्रमंदी से पूछा। इनकी शादी हुए 6 साल हो गए थे जब से ज़ुहान बाज़ार का खाना खा रहा था, और अब शादी के बाद भी बाज़ार का खाना खा रहा था। उसकी आपी ने अफसोस किया। जी आपी, कभी घर में हानिया की हेल्प से खाना बना लेता हूँ। उसने अपनी बीवी का पर्दा रखा था। वो नहीं चाहता था उसकी बहन हानिया को कोई बात सुनाए या उसे टोके। वो जिस घर से आई थी उसका एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। किचन के काम उसे कैसे सौंप सकता था? मैं जब तक यहाँ हूँ मेरे हाथ के बने खाने खाना, और रात के लिए चिकन ला देना, मैं कोरमा बना दूँगी। तुम्हें पसंद है ना? उसकी आपी ने फ़ौरन से कहा तो वो सर हिलाने लगा। हानिया को अपना आप बेकार लगने लगा। 7 बजे के करीब उसकी आपी किचन में खाना बना रही थी। साथ हानिया को खड़ा कर लिया था कि देखो कैसे बनता है। वो ज़ुहान की बातें करती उसे खाना बनाना सीख रही थी। कभी कोई बच्चा आता, मामा इसको देखें ये मार रहा है। कभी कोई उनके तीनों बच्चे खेल कूद के साथ मामा मामा कर रहे थे। हानिया को कोफ्त होने लगी। ज़ैनब हानिया को खाना देखने का कहकर किचन से बाहर चली गई थी। हानिया ने गरम गरम ढक्कन को हाथों से थाम लिया और ज़ोर से चीख पड़ी। दूसरे चूल्हे पर पानी उबल रहा था। हानिया का हाथ उस बर्तन से टकराया और पानी से भरा पतीला नीचे गिर गया। पाँव पर गरम गरम पानी जब गिरा तो हानिया की बुलंद बांग चीख सुनकर वो दोनों भाग कर आए। हानिया ज़मीन पर बैठी चीख कर रो रही थी। सुहान तेज़ी से आगे आया, उसे गोद में उठाकर कमरे के सिमत भागा। ठंडा पानी। वो तेज़ी से फ्रिज से बोतल निकालकर उसके हाथ पाँव पर डाल रहा था। हानिया सिसकी भरती रोने में मसरूफ़ थी। उससे जो जो हो सकता था वो तेज़ी से करने में मसरूफ़ था। हानिया का रोना बंद नहीं हो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार उसको जलन का एहसास हो रहा था। मैं डॉक्टर के ले जाता हूँ, सूजन भी आ गई है और छाले भी पड़ गए हैं। ज़ुहान ने फिक्रमंदी से हानिया को देखते कहा तो उसकी आपी ने सर हिला दिया। वो उसे लिए चला आया जब उसकी आपी ज़ैनब ने सर पीटा। कैसी बीवी लेकर आया है ज़ुहान? इकलौता भाई है, सोचा था शक्ल और काम दोनों में माहिर बीवी लाऊंगी। ज़ैनब बड़बड़ा रही थी। मामा, मामी बहुत क्यूट हैं, ज़ुहा ने कहा तो वो उसे घूरने लगी। क्यूट है तो क्या, काम कुछ आता नहीं? मैं उसे सही के सुना देती। तुम्हारे मामू ने मना किया कि उसे कुछ ना बोलूं, वो भी बच्ची है। शौहर रखने वाली लड़की बच्ची कब से हो गई? वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी। किचन में आकर फैलावा समेटा, खाना बनाया। 1 घंटे बाद वो हानिया को ले आया। हानिया को कमरे में लेटा दिया। उसकी भूख हानिया को रोते देखकर उड़ गई थी। उसने बमुश्किल 2 लुक़्मे खाए होंगे। वो कमरे में आ गया। हानिया बिना कुछ खाए पिए सो चुकी थी और वो उसके सराहने बैठा उसके बाल सहलाने लगा। उसकी तकलीफ़ पर ज़ुहान को तकलीफ़ हो रही थी। उसने सोच लिया था वो मेड रख लेगा, आइंदा हानिया को किचन नहीं भेजेगा। उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। ज़ुहान उसके मरहम लगाता था, वक्त पर दवा देता। स्टेशन होता तो कॉल करके कहता दवा का वक्त हो गया है। वो उसका पूरी तरह ख्याल रख रहा था। दूसरे दिन से मेड भी आ गई थी और उसकी आपी हैरान थी। ज़ुहान मेड रखने के हक़ में कभी नहीं रहा था, लेकिन अब बीवी का जो हो गया था। ज़ैनब हानिया के कमरे में आई कि वह बाहर नहीं आती थी। तुमने मेरे भाई को आराम का सुख दिया ही नहीं, बच्चे का सुख लाजमी देना, उसकी बहन हानिया से कह रही थी। हानिया मुंह खोले उसे देखने लगी। कौन से बच्चे? वो हैरत से पूछने लगी। वो कहता है तुम बच्ची हो,
और मुझे यकीन है वो चाहेगा तुम अभी माँ ना बनो, तो उसकी बात ना मानना और कोशिश करना इसी साल उसे बाप के रिश्ते पर फायज कर दो। उसने खुले लफ्ज़ों में हानिया को कहा तो वो सुर्ख चेहरा लिए देखने लगी। वो क्या बताती, उन दोनों में ऐसा कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। वो उंगलियां मरोड़ते सोच रही थी कैसे बताए, जब ज़ोहान ने वहाँ आकर उसकी मुश्किल आसान कर दी। आप ही अभी से हानिया पर ऐसी जिम्मेदारी ना डालें, ये अभी 21 साल की है। मैं मजबूर हूँ तो क्या हुआ, बच्चे माँ के पास ज़्यादा रहते हैं। मैं चाहता हूँ हानिया अपनी तालीम दोबारा से शुरू करे। वो अंदर आए सुन चुका था। उसने इत्मीनान से अपनी बहन से कहा तो हानिया उसे देखने लगी। अब वो तुम्हारी बीवी है, इसकी जिम्मेदारी है वो तुम्हारे ख़ानदान को आगे बढ़ाए। और कब तक तुम दूसरों के लिए जीते रहोगे, अपने लिए कब जीना शुरू करोगे? पहले मेरे लिए, अब हानिया के लिए। वो उसे गुस्से से देखते हुए कह रही थी। ज़ोहान ने सर नफ़ी में हिलाया। मेरी जिम्मेदारी हानिया है, ना कि मैं इसकी जिम्मेदारी हूँ। मेरी जिम्मेदारी है मैं इसका और अपना ख्याल रखूँ आप ही, उसने इत्मीनान से कहा और चेंज करने चल दिया। वो अपनी एक बात से उनकी सोच नहीं बदल सकता था, जो औरतों को बस जिम्मेदारी समझते थे। उसे यकीन था आप ही इस बहस को लंबा खींच देंगी। वो खुद बड़े ख़ानदान की बहू थी और इस हिसाब से वो चाहती थी हानिया भी ज़ोहान को हर चीज़ से आज़ाद कर दे। ज़ोहान जब वापस आया, हानिया उसे नम निगाहों से देख रही थी। वो जिस तरह इसका दिफा करता था, हानिया का दिल पिघलने लगा। उसे यकीन था वो सर्द मिजाज बदलिहाज मर्द है, लेकिन उसने हानिया को गलत साबित किया। अगर ज़ैनब वहाँ ना आती तो उसे मालूम ही ना होता कि ज़ोहान उसके लिए कैसी सोच रखता है। उसने शुक्र अदा किया कि वो वहाँ आई थी। चलें आ जाएं, खाना खा लेते हैं। उसने हानिया और ज़ैनब को वहाँ से उठाया तो वो दोनों उठकर टेबल पर आ गई। हानिया मुसलसल ज़ोहान को देख रही थी। उसका पाँव अब बहुत बेहतर था, वो चल फिर सकती थी। मुलाजमा ही खाना बनाया करती थी। ज़ैनब वहाँ एक माह रुकी थी और जाते हुए वो हानिया को नया जोड़ा पहनाकर अच्छे से तैयार करके गई थी कि शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए मेहनत कर लो। बस वो यही चाहती हैं, अब ज़ोहान का दिल रोज़ बरोज़ उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता रहे। हानिया ने लब काटे और तैयार होती रही। हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहना दी गईं। ज़ोहान बाहर से ही आपी को लिए चला गया था। उसने हानिया को नहीं देखा था। वो 3 घंटे बाद लौटा था और वो खाना लगा रही थी। उसके हाथ हिलाने पर छन की आवाज़ आ रही थी तो वो उसे हैरत से देखने लगा। वो मशरकी होलिये में थी। उसने कभी हानिया को ऐसे नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसकी दोस्त की शादी में भी वो बहुत सादा सी तैयार होकर गई थी और अभी उसने ज़रूरत से ज़्यादा ज्वेलरी पहनी हुई थी, मेकअप किया हुआ था। वो हैरान था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं कि शायद वो खुद से तैयार हुई हो। ज़ोहान ने चुपचाप खाना खाया। तुम्हारी यूनी कल से स्टार्ट है, उसने बताया तो वो सर हिलाने लगी। बिलाखिर वो यूनी जा सकती थी। वो कमरे में आया, मुलाजमा जा चुकी थी। हानिया काफ़ी देर बाद कमरे में आई थी। उसे देखकर मुस्कुरा दी। ज़ोहान को हैरत हुई, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। साफ दिखाई दे रहा था वो चूड़ियों के सबब उलझन का शिकार है। हाथ को बार बार मसल रही थी, कभी खुले बाल उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। खाने के दौरान दुपट्टा नहीं संभल रहा था। उसके करीब आया। हानिया सांस रोके उसे देखने लगी। उसने कलाई थामकर चूड़ियाँ उतारना शुरू कर दी। जब ज्वेलरी नहीं पसंद तो पहनने की क्या तुक बनती है। उसकी सारी चूड़ियाँ उतारकर ड्रेसिंग पर रख चुका था तो वो उसे देखे गई। वो उसकी हर बात से कैसे आगाह हो जाता था। हानिया को हैरत हुई। आप ही कह रही थी ऐसे शौहरों के दिल में जगह बनती है और वही ये सब पहना कर गई हैं। चाहती हैं आप मेरे साथ खुश रहें। उसने गर्दन झुकाकर कहा तो वो उसके सर को देखने लगा। वो शर्मिंदा थी कि ज़ोहान को खुश नहीं रख पा रही थी, हालांकि उसने भाई के कहने पर कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। ज़ोहान ने उसकी थोड़ी थामकर चेहरा ऊपर को उठाया और उसकी आंखों में झांका। मैं खुश हूँ और तुम्हें मुझे मुतवज्जो करने के लिए इन सब की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मसनूई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जानिब से नज़रें नहीं चुरा पाता, ऐसे खासी मुश्किल हो जाएगी। वो आखिरी अल्फाज कहते बड़बड़ा कर गया था और हानिया ने नासमझी से देखा। उसे सुनाई ना दिया था। मतलब मैं ये सब ना करूं फिर भी आप मेरे साथ खुश हैं? वो अचानक चहक कर पूछ रही थी तो ज़ोहान को हंसी आ गई।
हानिया वैसे किसी की बात सीरियस नहीं लेती थी और उसकी आपी की बात को पल्लू से बांध दिया था। बिल्कुल, वो उसकी नाक दबाकर बोला तो हानिया खुशी से उसके सीने से आ लगी। बहुत शुक्रिया। वो अपनी बेख्तियारी को समझ ना पाई थी। वो वाकई शदीद उलझन का शिकार थी। यूं लग रहा था बेड़ियां पहन ली हैं। ज़ुहान मुस्कुराकर उसकी पुश्त पर हाथ रख गया और वो अचानक शर्मिंदा होती पीछे हुई, फिर वॉशरूम में बंद हो गई। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ज़ुहान ने सर पर हाथ फेरा। अजीब लड़की थी। इस छोटी सी ब्रेक के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी को समझेंगे और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये बताइए कि कहानी कैसी है? क्या ज़ुहान हानिया को बदल पाएगा? क्या हानिया अपनी जिम्मेदारियां समझ पाएगी? या फिर ज़ुहान तंग आकर इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देगा? ये सब कुछ तो हमें आगे जाकर अंजाम में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से के जानिब। ज़ुहान सुहेल, जो कि हानिया का भाई था, उसके अहम मामलात को देखा करता था। अक्सर थाने के मामलात होते तो ज़ुहान ही उसकी कानूनी कार्रवाई में मदद करता और उसे आसान और कानूनी तौर पर ठीक रास्ते दिखाता। सुहेल काफ़ी परेशान था। उसकी बस एक ही बहन थी, हानिया। माँ बाप के बाद उसने हानिया को पाला था। हानिया कमअकल सी थी। सुहेल की बीवी से उसकी बहुत कम बनती थी और सुहेल की बीवी ने अचानक अब्रॉड मूव होने का प्रोग्राम बना लिया था। उसने अपने बच्चे का एडमिशन भी करवा दिया था, तो सुहेल को बात मानना पड़ी। लेकिन मसला ये था, वो हानिया को साथ ले जाने पर राज़ी नहीं थी। सुहेल भी चाहता था उसकी यहाँ शादी कर दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाए। उसकी बीवी ने उसकी नाक में दम किया हुआ था कि जल्द अज जल्द हानिया से जान छुड़ाई जाए। सुहेल परेशान था और उस रात ज़ुहान उसे पासपोर्ट वगैरह देने आया था। जब सुहेल ने उसे कहा कि वो इसकी बहन से शादी कर ले। वो कम उम्र और इमैच्योर है, लेकिन शादी के बाद हर लड़की बदल जाती है, वो भी बदल जाएगी। वो हानिया से 1-2 बार मिला था और वो उसे बुरे मुंह बनाकर देखती थी। उसे पुलिस वाले पसंद नहीं थे। दूसरी तरफ उसकी आपी अपनी नंद का रिश्ता इसके लिए भेज रही थी। उसकी नंद ने खुद कॉल करके ज़ुहान से कहा था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। वो किसी भी तरह हाँ ना कहे, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। ज़ुहान दोनों तरफ से फंस गया। दूसरी सुबह उसकी फ़्लाइट थी और हानिया को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते थे। सुहेल ने ज़ुहान के आगे हाथ जोड़ दिए कि वो इससे शादी कर ले, और ज़ुहान ने बात मान ली। हानिया ने काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। वो ज़ुहान के साथ रुखसत होकर बड़े से घर से छोटे से घर में आ गई। उसके भाई ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इसका घर बार तक ना देखा था। अर्जेंट पर भी वो हानिया का वेलकम अच्छे से करना चाहता था। उसने अच्छे से रूम को सजाया। पड़ोसन ही हानिया को बेड पर बिठाकर चली गई थी। जब ज़ुहान कमरे में आया तो वो गुस्से से पेचोताप खा गई। वो जैसे ही बेड पर जाकर बैठा तो उसने ज़ुहान पर ख़ासा गुस्सा किया। वो समझ गया कि वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी। ज़ुहान ने भी गुस्सा दिखाया और उसे घर से बाहर कदम निकालने से मना कर दिया। वो जज्बाती थी। इस ज़बरदस्ती पर कहीं भाग भी सकती थी। उसे फौरी तौर पर कराची जाना पड़ा। वो अगली सुबह ही चला गया, लेकिन उसने सारी रात यहीं कहते गुजारी थी कि वो फ़िज़ा की शादी में जाएगी, कदम भी बाहर निकालेगी। वो गार्ड को तैनात करके गया था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी दोस्त की शादी में चली गई। 2 दिन का कहकर गया था और 1 दिन में सिर्फ हानिया की वजह से वापस आया था कि वो घर पर अकेले होगी। उसे घर में ना पाकर इसका दिमाग उलट गया। वो कोशिश कर रहा था हानिया के लिए गाड़ी ले ले ताकि वो आसानी से उसके साथ आया जाया करे। उसके भाई ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। ये तक ना सोचा था कि वो उसके साथ एक आम सी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। ज़ुहान को इन सब की परवाह थी। वो बज़ाहिर यूँ लगता हानिया से चिढ़ता है या इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन वो हानिया के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हानिया का उसके लिए तैयार होना वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वो इस रिश्ते को मौका देना चाहती थी। ज़ुहान सोया हुआ था। हानिया ने उसकी जानिब देखा। उसका दिल किया उसके बाजू को छूकर महसूस करे कि वो कितना मजबूत है।
उसने आगे आकर इसके बाजू पर अपनी उंगली गाड़ दी। वो नींद में था, उसे एक नज़र देखकर नींद में डूब गया। हानिया को ये करने में मज़ा आने लगा। उसने दोबारा ज़ोर से उसके बाजू पर उंगली गाड़ दी। इस बार उसने पूरी आंख खोलकर हानिया को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसको तंग कर रही थी। वो तीसरी बार उसकी जानिब बिना देखे कि वो देख रहा है वही हरकत करने लगी थी। जब उसने हानिया की उंगली थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा तो वो हैरत से उसे देखने लगी। वो उसे खुद से लगाए आंखें मूंद गया और वो हैरत से उसके सीने पर पड़ी थी। वो जाग रहा था, वो उसे सता रही थी और यही समझ रही थी कि वो नहीं उठेगा, लेकिन वो उठ गया था। उसने मुस्कुराकर ख़ुद को रिलैक्स किया। दूसरे दिन वो उसे यूनी टैक्सी से छोड़कर गया। उसने इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेनी थी। हानिया यूनी से वापसी पर खुद आ गई थी, उसकी दोस्त ने छोड़ दिया था। शाम में वो आया, हानिया को रेडी रहने का कहा तो वो हैरत से बस सादा सा सूट पहनकर तैयार हो गई। वो उसे लिए शोरूम आया था। वहाँ से हानिया को गाड़ी पसंद करने का कहा तो उसने गाड़ी पसंद करके इसे देखा। वो एडवांस पेमेंट कर रहा था। ये आप किसके लिए ले रहे हैं? उसने वापसी पर हैरत से पूछा। तुम्हें यूनी जाने में परेशानी होती है ना? उसने तेज़ी से कहा। लेकिन ये बहुत महंगी है, आप कैसे इतने पैसे देंगे? उसने हैरानी से पूछा कि वो उसके लिए कितना कुछ कर रहा था। उसकी आंखें नम होने लगी। उसके सगे भाई ने 2 कौड़ी का करके छोड़ दिया था और वहीं इस शख्स ने उसे मौतबर कर दिया था। वो उसका किस अंदाज से शुक्रिया अदा करे, वो समझ ना सकी। मेरे बाबा की ज़मीन थी गांव में, उसे बेच दिया। उसे एडवांस अच्छा खासा दिया है, अब हर महीने कुछ रकम देनी होगी। तो मुतमईन रहो, मैं कर लूँगा। और वैसे भी मेरी तरक्की होने वाली है और सोच रहा हूँ 1-2 काम मज़ीद कर लूँ। उसने मुस्तकबिल को तरतीब दे रखा था। हानिया ने परेशानी से उसकी जानिब देखा, जो इतना काम करने वाला था। किस लिए? हानिया की खातिर? वो उसे आम मर्दों की तरह इसी में गुजारा करो कह सकता था। मैंने तुम्हारे भाई की ज़िद पर शादी की, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की में दिलचस्पी नहीं थी। वो आम मर्दों की तरह कह सकता था। बीवी हो, बीवी बनकर रहो, सर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, गुजारा करना होगा। वो अपनी कीमती चीज़ें, सुकून, पैसा इसके लिए बर्बाद कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि हानिया खुश रहे। वो इस शख्स की असीर हो गई। वो घर आई तो कमरे में बंद हो गई। ज़ुहान परेशान हो गया कि इसे क्या हो गया। वो गाड़ी देखते हुए तो खुश थी, फिर अब बात गाड़ी की नहीं थी, बात वैल्यू की थी। वो जज्बाती हो गई थी। उसने भाई की मोहब्बत उसकी शादी से पहले तक देखी थी। बीवी आते ही उसने हानिया को गलत समझा और जान छुड़ाने की कोशिश की। वो इस शख्स के लिए जज्बाती क्यों ना होती जिसने इतना कुछ किया था। वो दरवाज़ा पीट रहा था और हानिया सिसकी भरती रोने में मसरूफ़ थी। वो परेशानी से बाहर बैठा रहा और उसका इंतज़ार करते करते सोफ़े पर ही सो गया। हानिया दिल खोलकर रो देने के काफ़ी वक्त बाद बाहर आई। उसे सोफ़े पर सोता पाकर वो उसकी जानिब आई। पंजों के बल बैठकर उसकी आंखों के गिर्द हल्के देखे। चेहरा देखा जो इन तमाम अरसे में बोझल सा हो गया था। वो इसके लिए कितना कुछ करता था, क्या वो इसके लिए घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती? उसने तय कर लिया था कि वो उसका और उसके घर का ख्याल रखेगी, उसे सुकून के पल नसीब करेगी। वो काफ़ी देर सोचने के बाद खुद को तसल्ली देती हुई उठ खड़ी हुई। उसने ज़ुहान को जगाया था। वो जागते ही पूछने लगा कि वो ठीक है, तो हानिया ने सर हिला दिया। वो कमरे में जाकर वापस सो गया। वो वापस गाड़ी में आए थे। वो गाड़ी उनकी थी। दूसरे दिन वो यूनी उसे गाड़ी में ड्रॉप करने गया था। इस बार हानिया मुस्कुरा रही थी। उसकी दोस्तों ने हैरत से पूछा कि वो आदमी कौन था, तो इसने बताया इसका शौहर है। वो हैरत से उसे मज़ीद सवालात करने लगी। फ़िज़ा भी यूनी आ रही थी। कुछ दिन नाराज़ रहने के बाद उसने हानिया से दोस्ती कर ली थी। क्या मतलब? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तुमने अभी तक? वो उसे घूरते हुए पूछ रही थी। वो मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करते। मुझे लगता है बस शौहर होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, उन्हें कोई और पसंद है। उसने सोचते हुए कहा। वो बदगुमान होने लगी थी।
फिजा ने कहा, उसने आज तक ऐसा शौहर नहीं देखा जिसने बीवी से हक ना मांगा हो, इतना अरसा साथ रहने के बावजूद। हानिया को एक ही बात समझ आई कि जोहान किसी और को पसंद करता होगा। उसने सोच लिया वो जोहान के दिल से उस लड़की को निकाल कर रहेगी। फिजा से शादीशुदा ज़िंदगी पर बात होती तो फिजा उसे काफ़ी नादिर मशवरे देती कि उसका ख्याल रखो, उसकी नज़रों में रहने की कोशिश करो। हानिया आजकल उन्हीं बातों पर अमल कर रही थी। उसने कुछ ऑनलाइन जॉब ज्वाइन कर ली थी ताकि वो जोहान पर बोझ बनने के बजाय अपना खर्चा खुद उठाए। जोहान उस रात देर से आया था। हानिया उसका इंतज़ार करती नींद में झूल रही थी। उसने खुद खाना बनाया था। न जाने खाना कैसा बना था, उसे टेस्ट करते डर लग रहा था। इसी वजह से टेस्ट ना किया। जोहान ने उसे कुर्सी पर झूलते देखा तो उसकी जानिब चला आया। हानिया, नींद आ रही है तो रूम में जाओ, उसे जगाते हुए बोला। आप आ गए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। उसने मुस्कुराकर तेज़ी से प्लेट सेट की। वो यूनी से आने के बाद किचन की सेटिंग, टेबल सेट करने का तरीका, शौहर को खुश रखने की टिप्स देखती थी। वो प्रोफेशनल अंदाज से हाथ चला रही थी तो जोहान ने उसे हैरत से देखा। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। हानिया ने खाना निकाला और बैठ गई। वो उसी की जानिब देख रही थी। जोहान ने पहला नवाला मुंह में रखा। नमक की जगह मैडम चीनी डाल चुकी थी। वो उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। जोहान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजाई। बहुत मज़े का है। उसने मुश्किल से नवाला हलक से नीचे उतारा। मैं भी खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है, वो तेज़ी से बोली तो जोहान ने उसके हाथ थाम लिए। हम बाहर चलते हैं, उस दिन शिकवा कर रही थी ना, गोलगप्पे नहीं खिलाता, उसने तेज़ी से खड़े होते कहा। वो हानिया का दिल बुरा नहीं करना चाहता था। हानिया खुश हो गई। वो उसे साथ लिए उसकी पसंद की चीज़ें खिलाता पिलाता रहा, उसे समझाता रहा कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन हानिया के सर पर अच्छी बीवी बनने का भूत सवार था। दूसरे दिन मुलाजमा से मालूम हुआ कि सालन में नमक की जगह चीनी डाल बैठी थी। फिर उसने खुद को खूब कोसा। मुलाजमा की मदद से उसने दूसरे दिन फिर खाना बनाया। जोहान ने थूक निकला कि आज फिर चीनी वाला खाना खाना पड़ेगा। लेकिन आज खाना बहुत बेहतरीन बना था। वो खुद भी हैरान था। हानिया एक एक चीज़ पर 100 दफ़ा ध्यान देकर खाना बना रही थी। वो अगले दिन तैयार हुई बैठी थी क्योंकि उसकी बर्थडे थी और वो चाहती थी जोहान उसे विश करे। क्या कहीं जा रही हो? वो 10:30 बजे घर आया था। उसने मैसेज कर दिया था कि हानिया खाना खा ले, वो खा कर आएगा। वो खाना खा चुकी थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। वो मेरी बर्थडे थी, सोचा ख़त्म होने से पहले तैयार होकर सेलिब्रेट कर लूँ, उसने बताया तो वो अफसोस करते रह गया। उसने जल्दी से केक ऑर्डर किया और 12 बजने से पहले केक कट करवाया। ये आपके लिए। उसने एक तोहफ़ा इसकी जानिब बढ़ाया तो वो उसे खोल कर देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। बॉक्स में बहुत सारी टी शर्ट, पैंट, टाई थी। वो हैरत से देखने लगा। मेरी बर्थडे नहीं है, तुम्हारी है, लेकिन ये सब क्यों? पैसे कहाँ से आए इतने? वो हैरत से इस्तफसार कर रहा था। वो ऑनलाइन वर्क से जमा किए थे। आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, सोचा आपके लिए ले लेती हूँ। फिज़ा के साथ जाकर लाई थी। कैसे लगे आपको? वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। ये सब क्यों कर रही हो? वो हैरत से पूछ रहा था। जब से यूनी जाना शुरू किया था वो बदल रही थी। आप भी तो इतना कुछ करते हैं। आपसे बोला कभी कि ये क्यों कर रहे हैं? मैं बस चाहती हूँ आपके दिल में जो भी है उसकी जगह मैं ले लूँ, उसने सर झुकाकर कहा तो वो हैरान होता उसे देखने लगा। मेरे दिल में कौन है भला? वो हैरत और मुस्कुराती आंखों से पूछ रहा था। उसे हानिया का बदगुमान होना अच्छा लगा था। वो बदगुमानी दूर होने के बजाय करीब हो रही थी। आप जिसकी वजह से मेरे करीब नहीं आते, फिज़ा कहती है आपके लिए ये रिश्ता महज जिम्मेदारी है, उसने नम आंखों से कहा। तो वो फौरन पास आया और हानिया के कंधे थाम लिए।
मैं इसलिए पास नहीं आता कि तुम अभी इमैच्योर हो। ये रिश्ता जिन हालात में बंधा, तुम अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो। मैं नहीं जानता था तुम इस बात को लेकर इतना सोचती हो, और मेरे दिल में जो है तुम उसे निकालना बिल्कुल नहीं चाहोगी। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मोहब्बत हो। जानता हूँ शादी पर तुम ना खुश थी और ना ही मैं खुश था, लेकिन फिर तुम्हारी जो हरकतें मुझे गुस्सा दिलाती थी, उन्हीं हरकतों से मुझे मोहब्बत होने लगी। तुम पहली वाहिद लड़की हो जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में जगह दी, जिसके लिए मैं गुस्सा करना भूल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस कदर भी बदल सकता हूँ। वो उसको कमर से थामे सरगोशी में बोल रहा था और वो नम आंखों से उसे देखने लगी। मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत कैसे की जाती है। वो उसके सीने पर हाथ रखे बता रही थी तो ज़ुहान ने उसकी आंखों पर लब रख दिए और उसने सुकून से आंखें बंद कर ली। वो उसे गोद में उठाए बेडरूम में ले आया। आज मैं तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर दूंगा। मैं इस मामले में बिल्कुल आम हूँ। तुम्हें देखने के बाद तुमसे दूर रहने के लिए 100 जतन करने पड़ते थे। जब यहाँ सोती थी दिल करता था खींच कर अपनी आगोश में भर लूँ। डर था तुम कहीं ये ना समझो मैं तुम पर ज़बरदस्ती हक जता रहा हूँ, लेकिन अब हक जताना ज़रूरी है, वरना मेरी बीवी समझेगी कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की है। वो मुस्कुराकर उसके बाल चेहरे पर से हटा रहा था। वो उसकी बातें सुनकर मदहोश हो रही थी। उसके कोलोन की खुशबू हवासों पर छाने लगी थी। हानिया ने नम आंखों से मुस्कुराकर ज़ुहान की बेताबी देखी। कैसी लगी आप सबको कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।